Hello, my lovely viewer. My name is Arshdeep Bajaj and I represent my firm N-Space Realty, a unit of Bajaj Properties, जिनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा. So N-Space is a realty firm that I came up with. I trademarked the name in 2020. Idea behind it was that I wanted to take the legacy of Bajaj Properties to a corporate level and I wanted the name to be professional. N space is basically n number of spaces. यही आइडिया था that मेरी तरफ से कभी मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा even if my client sees n number of spaces. So if I talk about Bajaj Properties, it's a firm that started in 1994 by my father and my chacha ji. We started in Parparganj and then we moved to Dwarka in 2001. When Dwarka was just establishing, यहाँ पे पापा चाचू ने फार्म्स देखे. We shifted in 2005. हम यहाँ रहने लगे. उससे पहले मेरे फादर ईस्ट दिल्ली से रोज अप डाउन करते थे यहाँ काम करने के लिए. Talking about how I got into real estate, अपने कॉलेज के साथ साथ I was never that interested in roaming around with people. तो मैं ऑफिस आके बैठ जाता था. I used to see how द्वारका office is functioning, which is Bajaj Properties. I used to come, मैं बैठता था रोज आके. I used to see how my staff is functioning and I always had this urge to do sales. और मुझे मजा आता था. Public dealing was something I thought I'm very comfortable with. I could actually expand my business rather than just being another resource in my Dwarka office. So I decided that I'll start a Gurgaon office and that's what N-Space Realty is. I normally start with the base एकदम. I start with the location. बहुत basic चीज़ें भी. When I thought about coming on YouTube, the idea behind was that I'll talk about various terms that are not really common, like project density, कि एक एकड़ में कितने फ्लैट्स हैं, क्लब डेंसिटी की क्लब में कितनी भीड़ रहेगी, लिफ्ट डेंसिटी कि लिफ्ट का कितना वेट करना पड़ेगा. बहुत छोटे छोटे टर्म्स का ध्यान देने की कोशिश करी और यही तरीका मेरा ऑन ग्राउंड भी रहा है कि अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम नॉलेज दे सकूं सो दैट दे आर एबल टू टेक अ वेरी गुड इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ऐसे डिफरेंट नहीं बोलूंगा बट आई वुड से दैट आई हैव बीन एन इकोनॉमिक स्टूडेंट. लॉ में भी आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नंबर्स. तो आई टॉक फैक्ट्स. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्चुअल नंबर्स पे बात कर सकूँ. मैं वो नॉलेज दे सकूँ जो इमोशन बेस्ड कम हो. I am a runner. I have completed the Tata Marathon once and I've completed around 15 half marathons. I am also a certified scuba diver. I have 4 certifications. I can dive till 40 meters. उसके अलावा I am fond of traveling. I have traveled multiple countries. Hello my viewer. My name is Arshdeep Bajaj and I represent my firm N-Space Realty, a unit of Bajaj Properties. I'm a second generation realtor. No, third generation, my dear. You are second generation in Delhi. Okay. या बजाज प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था आपके दादाजी ने. सो देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट है बल्लूपुर के पास उन चक्राता रोड. उसके सामने एक मोहित नगर करके कॉलोनी है. वो कॉलोनी हमारी डिज़ाइन की हुई है और हमारी वहाँ पे खेत थे. मैंने देखे अपनी आंखों से. लाइक अ टाउनशिप नाउअडेज जो हो रहा है. Okay. वो हमारे डैडी ने किया हुआ है. उसके I'm happy to know I'm third generation all of a sudden. तो पापा आपका वैसे how was coming to Delhi and how did you start? दिल्ली आने पे इमीडिएटली हमारा सीधा रियल एस्टेट में ही आए. मैंने स्टार्ट किया पटपड़गन से. टारगेट जैसे कहते हैं, पहला टारगेट था कि दिल्ली शिफ्ट होना है, अपने बच्ची को दिल्ली में बड़ा करना है. आई अचीव दैट बाय ग्रेस ऑफ गॉड. तो मैं खुश हूँ उससे कि मैंने जो भी किया कि कोई फ्रॉड नहीं किया. मतलब मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो आज भी मेरे टच में है. कि जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट यहाँ का था वो भी पटपड़गंज के रेफरेंस, किसी क्लाइंट के रेफरेंस से ही था. तो आज भी वो वहीं रहते हैं. वेरी Lovely. अच्छा. आज भी टच में है. When I started working, this was in 2019, and the first thing Papa told me was, तुम्हारे opinion के basis पे किसी की life savings लगेंगी. I was told to understand that responsibility, which I still take very seriously. वर्ड इज वेरी स्मॉल. तो वो स्मॉल ही है. Dwarka Expressway will always be the forte, but we are happy that we have expanded in all of Gurgaon now. The plan for N-Space is that we want to grow this company to a corporate at some point in real estate with pure fair practices, and that's what I've tried to do so far. Even the idea behind the YouTube channel is that मैं अपने clients को genuinely educate कर सकूं ताकि they are able to take an informed decision. उनको कभी ये ना लगे कि वो किसी की बातों में आके कुछ ले रहे हैं. I also don't want कि मेरी बातों में आके कोई कुछ ले. यही होना चाहिए. ये रेफरेंस कमाना अपने आप में पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो मैं हमेशा से तेरे को सिखाता हूँ. ट्राई टू अर्न दैट. So चाचू, how's your story been like? आप द्वारका आए थे परपड़गंज से. हाँ, पटपड़गंज से. है ना. आपने स्टार्ट पहले परपड़गंज किया था ना. पटपड़गंज. तो हाउ वाज योर जर्नी? जर्नी इन द सेंस हरविंदर पहले आया था और मैं अराउंड अपना पंजाब से वाइंड अप करके 1994 में मैं पहुंचा वहाँ पर. 1994 या नहीं 95. यस, पापा 4 में आए थे. लवली 4 में आया था, मैं 5 में आया. आपको कैसा लगता है द्वारका जब से आप काम कर रहे हो? बहुत अच्छा. द्वारका में काफ़ी काम मिला, काफ़ी काम किया.
काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। जैसे फ्लैटों के अंदर पहले हम इंटीरियर नहीं कराते थे, इंटीरियर कराया, फ्लैटों को लेना, बेचना, मेहनत करनी, थोड़ा टफ टाइम भी देखे। जब ये सीबीआई का जब छापा पड़ा उसके बाद बहुत टाइम तक कोई नई सोसाइटियाँ बन के खड़ी थी, कोई ड्रॉ नहीं हुआ था। तो मेंबर्स ने सेल्फ ड्रॉ कर लिया, उसकी सेल परचेज होती थी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते थे। अच्छा। हमने कभी वो काम नहीं किया। अंडर कंस्ट्रक्शन पे मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होती थी, कच्चे फाइल साइन हो जाती थी, हमने कभी वो काम नहीं किया। काम हमेशा वही किया कि आज हमने किसी क्लाइंट को चीज़ दी, उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन हुई, सेल डीड हुई, उसको पोजेशन दिया, दैट्स इट। वो एक फॉर्मूला रखा है लाइफ के अंदर और आगे भी रहेगा कि कच्चा काम नहीं, जो काम करते हैं पक्का करते हैं। आपका नॉर्मली प्रोसेस क्या रहता है? अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, एज अ नया बायर आता है और आपको बोलता है कि मुझे फ्लैट लेना है या लेट्स से मुझे प्लॉट लेना है, तो आपका क्या आप क्वेश्चंस पूछते हो? आपका क्या विजन रहता है उस क्लाइंट को लेकर? देख, क्लाइंट जो भी आए ना, यहाँ पर आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उनका काम है सिर्फ आए क्लाइंट को फ्लैट दिखा दिया, नहीं। जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, सबसे पहले उसके साथ बैठो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब तक वो तुमसे 1 to 1 रिलेट नहीं करेगा ना, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट समझो, उसको क्या चाहिए, राइट। जो डूज एंड डोंट्स या पॉज एंड कॉज, जो जो अच्छे लग रहा है उसको एक नोट डाउन करते रहो। अपने क्लाइंट को उतनी ही चीजें दिखाओ, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखाओ, ये गोल होना चाहिए। व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस टू अ क्लाइंट? अब कोई बायर आपके पास आया, कोई सेलर हो एक गर्म मार्केट में, जो अभी 2-3 साल पहले तक थी, गुड़गांव आपने एक्सप्रेस वे देखा है, डबल ट्रिपल हो गए पैसे, हमारे प्लॉट्स में बढ़ गए, सब कुछ हुआ। आपका क्या रहता है विजन कि एक स्लो मार्केट में कैसे डील करना चाहिए और एक तेज मार्केट में कैसे डील करना चाहिए? देखो, अगर कोई एंड यूजर है जो रहने के लिए ले रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ ज्यादा सोचना चाहिए। उसके पास एक बजट आया, उसने रहने के लिए लेना है, उसका आज 2 करोड़ का घर 10 करोड़ का भी हो जाएगा, उसने कौन सा बेचना है? बिल्कुल ठीक। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए रियल एस्टेट की मार्केट एज ऑफ नाउ बहुत अच्छी नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अगर हम बात करें, एक्सटेंशन रोड इज गोइंग टू बी वेरी गुड। द्वारका एक्सप्रेस से बहुत अच्छा जाने वाला है। जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी वो यहाँ पर करे। जो शॉर्ट टाइम वाले, वो 3-4 साल वाले बढ़ेंगे वो भी, लेकिन वो ये वाली 100 वाले अगर समझ लें 125-150 के हो जाएंगे, तो मेन गुड़गांव 100 वाला 125 पे जाएगा। विजन एंड मिशन। The vision and mission for Nspace would be to be a household name in the Gurgaon real estate market first. But of course, मुझे लगता है कि I would love to take it back to where दादाजी left. I hope I make a township someday in the name of Bajaj or Nspace. It was that I met a client at random. उनका कोई प्लान नहीं था निकलने का. This was Hero Homes 2019. That guy trusted me. And उन्होंने उसी दिन, he was not carrying his checkbook, he was not carrying anything. मेरी गाड़ी में ही हम उनके घर गए, हम घर से चेकबुक लेके आए और सेम डे वी गिव द चेक. हिज प्रॉपर्टी इज वर्थ 3 times व्हाट ही हैड परचेज्ड इट फॉर. ही स्टिल अ वेरी गुड क्लाइंट. ही हैज गिवन मी हिज फैमिली रेफरेंसेस. सो दैट इज वन. उसके अलावा मेरे क्लाइंट KPMG के हैं 6 साल पहले, 2019 अगेन. एंड आज तक वो प्रॉपर्टी उन्होंने विजिट ही नहीं की. तो बट उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी, उनकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़वाने में भी हमने हेल्प कर दी थी. So as we reach the end of this video, I'll just explain the vision for my YouTube channel first. Idea is that Dwarka Expressway is where I'm starting from. हर एक project पे I'll try to make a video of every single residential project and townships, BPTP, G99, Westerlies, Sobha International City. तो we'll cover all of that. After that we'll move towards Golf Course Road के जो DLF के plots हैं, Extension Road में जो townships हैं. We'll make videos of Extension Road and Golf Course Road as well. So that's the idea for the YouTube channel. Other than that, if you end up contacting me or my team, the idea is very simple. मेरी 1-2 teams कम भी होंगी तो भी it's less of a matter of concern for me, to be honest. मेरे client किसी broker के sales target के चक्कर में सफर नहीं करना चाहिए. वो मेरे साथ कभी नहीं होगा. That's one promise. And I hope whatever decision we take together is a very fruitful decision for you and your family. Looking forward to connecting with you. Take care.